during this session. Okay, ठीक है. ठीक है. So जब आपको लगेगा ना कि आपने 10 seconds का break लेना है या 15 seconds का break लेना है, then we can continue with this Q&A session. और अगर आपको लग रहा है कि पूरा योगा के बाद में करना है, पूरा योगा के बाद में लेना है, तो पूरे सेशन के बाद में भी ले सकते हैं. लास्ट के 15-20 minutes we can keep for Q&A. हाँ, तो मैम वो पूरे सेशंस के बाद ही लेंगे क्योंकि वो एक फ्लो में जाएगा. तो आई डोंट वांट, क्योंकि एक बार when you lie down and go deeper ना, तो वो then it won't make sense कि you come out again, get up and start asking questions. हाँ, no problem. It's up to you. हाँ, so session will take I think from 20 to 30 minutes, and after that 5 or 10 minutes का we can do. हाँ, sure, definitely. तो ये कब तक चलेगा? So that maximum कब तक चलेगा मैम? 5 o'clock तक. हाँ, 5 o'clock. ठीक है मैम. Okay, thank you. Yes. Bedroom. Yes. इसी के रिमोट दे दो और ये टॉवल को रख देना जगह पे. क्या करता है तुम? So Rati ji, just let me know when I have to start. Yes, ma'am, sure. I know. Another 2 minutes, we'll start your session. Let other people also join.
Sure. These are your boys, है ना? तुम चल तू बहुत तंग करता तेन मैंने कहा सी ना अपना बोर्ड लेके बैठा कर Okay, Gulshan ma'am, you can introduce yourself. Okay, and then you Okay. can start your session. I'll mute to all. After that, you can start your session. Sure. Hello, namaste everyone. My name is Gulshan. By profession, I'm a yoga therapist. I used to run my studio, Lotus Yoga. And today I'm going to teach you, or I want you to experience this deep relaxation technique. So deep relaxation technique is basically you be aware of all the joints in your body, all the muscles which are sore, which are tightened, and try to relax them. Just unmute yourself. Yeah. So today is a deep relaxation technique. As the name suggests, deep relaxation is be aware of our like going inside deeply to your body and try to relax each and every joint in your body. And in the deep relaxation, we'll relax our body and then we'll try to relax our mind. As you know, right now, everyone is during this lockdown period, and because of this, all these fears, about this COVID-19 virus, everybody has that fear in the mind, what will happen next, or whether should I, like, how do I take what kind of precautionary measures, to build up my immune system, how do I relax? So all these lot of disturbing thoughts going on in the mind. Everybody is stressing out, and being at home, and if husband is going out, or the kids are going out, you are always worried, oh, let everything will be okay and all. So this deep relaxation technique will help to relax our mind. So basically relaxing from grosser level to the subtler level. And sometime with this continuous fear in our mind, it will go so deep in our mind, like lot of impression in our mind. And we try to accumulate all these impressions, and which will lead us to pain in the body, whichever is the weaker point in your body, or tightening the muscles, and just lot of anxiety, and some people go to in depression also. So but if we are doing this deep relaxation, this will help to release all those deep impressions which we are holding inside. And the research has shown if you do this 20 to 30 minutes deep relaxation, it is equivalent to 4 hours sleep. Especially those who have this high BP problem, or those who have this sleep apnea problem, or depression, anxiety, for them it's a very good technique just to relax our body and the mind. So you must have heard from everyone that relax, be relaxed at this time, and try to do meditation, try to just bring the positive thoughts and all that. But how to bring them?
So this is like a practical session for you. How to relax yourself, how to bring positive thoughts in the mind, how to relax your body first, and then go to the mental level to relax. So this Sorry we for are the going to experience. sorry for the interruption, ma'am. If you can please brief in Hindi, so that would be really great. Oh, sure. So can I just No, you can like continue, English, but Hindi both? yeah, English, Hindi both. Okay. You can continue, ma'am. Mhm. Okay. Okay, sure. तो ये जो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, इसमें क्या है कि हम अपने शरीर के जो है हर जॉइंट को, हर हिस्से को जो है बहुत डीपली रिलैक्स करते हैं, और अपने मन को भी, जो हमारे मन में ये व्याधियां हैं जो एक्यूमुलेट हो गई हैं, या जो हमारे अंदर डर है, या हमारे अंदर कोई गिल्ट है, उसको रिलीज करने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। और आज इस सेशन के द्वारा जो है हम उसे जो है एक्सपीरियंस करेंगे, उसे महसूस करेंगे कैसे जो है ये सारी व्याधियां जो है रिलीज कर सके अपने माइंड से, और कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके। और ये पूरे सेशन में जो है आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना है, एंड आपको अपनी अवेयरनेस जो है बॉडी पार्ट में लेके, और धीरे धीरे उस पार्ट को रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। तो ये जो है आप अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे, जैसे है शवासन में, अगर आपने मैट या कोई दरी बिछाई है तो आप उस पे लेट जाइए। आप अगर फोन पे या लैपटॉप पे हैं, आप बस अपना स्पीकर फोन ऑन कर दीजिए। ये पूरे सेशन आपको आंख बंद करके मुझे सुनना है, और इस चीज को फॉलो करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस मैं बोलूंगी उसको फॉलो करना है, और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जो लोग नहीं लेट सकते वो चाहे कुर्सी में आंख बंद करके जो है पूरा शरीर को ढीला छोड़ के बैठेंगे, या जो लोग नीचे नहीं लेट सकते, अगर कोई ऐसे हैं बहनें की जो नहीं नीचे लेट पाएंगी, वो लोग बेड पे भी लेट सकते हैं। अपना फोन या आपका कंप्यूटर जो है लैपटॉप आप वहां ले जाइए बेड पे, और जस्ट वॉल्यूम ऑन करके आप आंख बंद करके लेट जाइए। आई विल गिव 2 मिनट्स। आप लोग अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाइए, चाहे आपको नीचे लेटना है, बेड पे लेटना है, सोफे पे लेटना है, या आपको किसी कंफर्टेबल चेयर पे बैठना है। ओके मैम, अगर खाना खाने के बाद इमीडिएट कर सकते हैं क्या, अगर किसी ने अभी लंच किया है? हाँ हाँ कर बबीता सकते मैम, कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि बबीता हाँ मैम हाँ आप कर सकते ये रिलैक्सेशन है। हाँ जी, ये रिलैक्सेशन है, तो इसमें क्योंकि हम कुछ प्राणायाम या कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी मूवमेंट जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, तो इट्स यू कैन डू आफ्टर हैविंग लंच, नो प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो मैम, आई वांट यू टू टेल देम कि जैसे आपने कोविड पेशेंट्स के लिए किया है, राइट, यू वर टेलिंग मी कि आपने कोविड पेशेंट्स को किया है, ऐसा ट्रीटमेंट दिया है ऑनलाइन, और उनको काफी बेनिफिट मिला है। सो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इन सबको भी बताइए कि कैसे आपने उनको ट्रीटमेंट दिया और जिससे उनको बेनिफिट हुआ इस टेक्निक से। हाँ जी, तो कुछ हमारे जानकार थे जिनको जो ऐसा पॉजिटिव हो गए थे अभी ड्यूरिंग दिस टाइम, सो उनको दे हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि किसी को मिलने नहीं दे रहता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, तो लाइक पीपल विल बी मोर इन अ डिप्रेसिंग स्टेट जब वो लोग अकेले होते हैं या कुछ है। तो ऐसे कुछ जो जानकार लोगों के साथ मैंने काम किया, उनकी ऑनलाइन मैंने जो है सेशंस लिए, सिंपल कुछ ब्रीदिंग टेक्निक
जैसे कई बार हम बोलते हैं कि नहीं हम तो योगा करते हैं हमें, लेकिन एक रिदमिक वे में एक जो है सपोज जैसे उन लोगों के साथ कैसे काम किया था कि उनको एक करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग बताया। ऐसी ब्रीदिंग जो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं कई, और उस समय उनके पास बहुत समय रहता है, पूरा दिन उनका कुछ ना कुछ टेस्ट चलता है या दवाई चलती है, खाना रहता है, उसके अलावा उनको वहाँ कुछ मतलब करने को नहीं होता है। तो खाली बैठे बैठे और उनका दिमाग जो है ना और फेयरफुल होता है। तो इसलिए इन टेक्निक से उनको बहुत हेल्प हुआ, और मतलब 14 डेज का तो 1 वीक में ही उनका पॉजिटिव हो गया या कुछ है, और वो लोग अपने अपने घर लौट गए। तो ये ऐसे कुछ मैंने पेशेंट्स के साथ किया था ये चीज। उनका जो उपचार चल रहा था वो चल रहा था हॉस्पिटल में, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई जो डॉक्टर, बट उसके साथ इफ यू डू दिस रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड फ्यू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो है, उससे जो है ना आपका एक तो इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपके जो मन की पॉजिटिविटी जो है ना विल पावर बढ़ती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके माइंड में। एंड देयर वर फ्यू लाइक वेरी गुड रिजल्ट्स व्हिच वी हैव सीन विद द कोविड पेशेंट्स। तो जैसे मैंने बताया कि जो डीप रिलैक्सेशन है ये हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को जो है ना बहुत डीपली रिलैक्स करता है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस करें आज, और अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किया आपने जो है। और स्पेशली हम लेडीज क्या है कि एक नेचर रहता है कि हमेशा जैसे ना या तो बच्चों के लिए वरीड रहते हैं या हस्बैंड के लिए या घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हम दूसरों को तो रिलैक्स करने के लिए अच्छा खाना है वो सब में बिजी रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को रिलैक्स करना भूल जाते हैं। हार्डली टाइम होता है कि हम अपने आप को डीपली रिलैक्स करें। तो ये आपका जो है टाइम ऐसा है कि आप अपने मन को, आप खुद देखिएगा कि जब आप खुद रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका रिलैक्स होगा, आप अंदर से खुश होंगी, तो आप जो है अपने परिवार को और बाहर सोसाइटी को भी जो है आप एक पॉजिटिविटी के साथ खुश रख सकते हैं। So I want you everyone to experience this positivity. तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो I'll request everyone कि आप लोग अपनी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा था आप लोग शवासन में मतलब जो है पीठ के बल लेट जाएंगे, चाहे आप नीचे मैट पे लेट जाइए, बेड पे या किसी भी कंफर्टेबल जगह पे। और इसमें क्या है, अभी मैं सेशन स्टार्ट करूंगी, तो अगर किसी को कोई भी प्रश्न है या कुछ नहीं समझ आ रहा या कुछ है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि एंड में करें, क्योंकि बीच में एक बार व्हेन यू गो टू वेरी डीप ना, अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो रिक्वेस्ट एवरीवन कि बीच में अगर कुछ भी है ऐसा लग रहा है या कुछ है, तो आप सेशन के एंड में मेरे से आप पूछ सकते हैं क्या हुआ। बीच में ऐसा कि मुझे नहीं सुना या मुझे क्या हुआ, ऐसा अगर बीच में बोले तो वो सब लोगों का रिलैक्सेशन डिस्टर्ब ना हो जाए, उसके लिए ये रिक्वेस्ट भी सब म्यूट पे हैं, तो हम Q&A जो है वो एंड में ही करेंगे। ओके ठीक है, तो सब म्यूट पे हैं, आप ही हाँ जी हाँ बस। हाँ एंड बाय द वे, नहीं मैंने कहा अगर कोई जैसे किसी को नहीं सुन रहा, कोई जी, अपने आप को अनम्यूट करके या बीच में से हाँ जी, कोई हाँ, नया ज्वाइन किया तो एकदम से ऐसे रहता है ना कई बार, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू टेल देम। हाँ, श्योर मैम। और आई होप कि सब लोग और इस का बेनिफिट लें, जिनके कैमरास ऑफ हैं, सिर्फ कविता मैम का, ज्योति मैम का कैमरा ऑन है, जो कि करते हुए दिख रहे हैं। तो आई होप ज्यादा से ज्यादा सब लोग इस योगा का बेनिफिट लें, एंड यू कैन कंटिन्यू मैम। ओके, शुभ का भी ऑन हो गया। ठीक है, हाँ तो हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट जो मैं आप कह रही हूँ वो इंस्ट्रक्शंस को जस्ट फॉलो करना है, आपको सुनना है, महसूस करना है और अपने शरीर को रिलैक्स करना है।
बीच में कई बार आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि आप सो भी जाते हैं, तो दैट इज नॉर्मल। तो डोंट थिंक कि बीच में अगर झपकी आ जाती, दैट इज अ नॉर्मल। लेकिन हमें जो है बिना सोए पूरी अवेयरनेस से जो है बॉडी को रिलैक्स करना है, तभी इसका डीपली इफेक्ट आपको समझ आएगा, ये है। लेकिन अगर सो जाते हैं, बीच में थोड़ी झपकी भी आ जाती है, तो वो नॉर्मल है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया या कुछ है। और कई बार तो लोग खराटे भी लेने लगते हैं, तो दैट इज नॉर्मल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सब लोग जो है आंख बंद करके ले जाएंगे, पीठ के बल, आंखें बंद, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेंगे। दोनों हाथ बॉडी के साइड पे, हथेलियां आसमान की ओर। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। स्कैन करेंगे बॉडी को टोस से हेड तक, जैसे कि अपने आप को मिरर में देख रहे हो। सबसे पहले हम अपने पैरों पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। रिलैक्स योर टोस, पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। एक के बाद एक, पहले अंगूठे को, फिर बाकी उंगलियों को। धीरे से दोनों पैरों की एड़ियों को रिलैक्स करेंगे। आपके एंकल जॉइंट को रिलैक्स करेंगे, कोलैप्स करेंगे। धीरे से काफ मसल्स को फील करेंगे। अगर कोई टाइटनेस है तो उसको रिलैक्स करेंगे, कोलैप्स। अब आपको अपना ध्यान आपकी नीज की ओर ले जाएंगे, पुल अप करेंगे नीज को थोड़ा सा, और फिर एकदम रिलैक्स, कोलैप्स। अब आपकी थाइस को रिलैक्स करेंगे। आपके हिप्स को रिलैक्स करेंगे, ग्लूटल मसल्स हैं उससे। हिप जॉइंट को लूजन अप करेंगे। और आपकी वेस्ट को रिलैक्स करेंगे। अभी लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपका निचला हिस्सा एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसे और ज्यादा डीपर रिलैक्स करने के लिए हम अकारा का उच्चारण करेंगे। फर्स्ट सिलेबल ऑफ ओम। गहरी सांस लेंगे। अकारा आपकी नाभि से निकलता हुआ अकारा धीरे धीरे आपके पैरों की तरफ जा रहा है, उसे महसूस कर।
अब हम अपना की तरफ लेके जाएंगे। और स्टमक को अप एंड डाउन रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए जो है पेट ऊपर की तरफ जा रहा है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इट्स सिंकिंग इनसाइड। पांच ब्रेथ ऑब्जर्व करेंगे। ब्रीद इन, स्टमक इज बल्जिंग अप, पेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्रीद आउट, सिंकिंग डाउन, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। और आप फील करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने लंग्स की तरफ ले जाएंगे। पहले राइट लंग को रिलैक्स करेंगे, फिर लेफ्ट को, फिर अपने हार्ट की तरफ ध्यान देंगे और अपनी धड़कनों को सुनने की कोशिश करेंगे। You are so relaxed. You listen to your heartbeat. इस समय आप इतने रिलैक्स हो रहे हैं कि अपने धड़कनों की आवाज भी सुन सकते हैं। धीरे से कंधों को फील करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे। Slowly relax your bicep, tricep muscles. एल्बो को रिलैक्स करेंगे, आपकी फोर आर्म को रिलैक्स करेंगे, आपकी रिस्ट को रिलैक्स करेंगे और आपके हाथों को, आपकी हथेली को। And start relaxing all the fingers one after the another. अपना ध्यान आपकी टिप्स ऑफ द फिंगर है उस पे ले जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। मैं करेंगे पल्स। अब अपना ध्यान पूरा आपकी पीठ पे, आपकी जो लोअर बैक है, जो निचले हिस्से की आपकी कमर है, उसे रिलैक्स करेंगे। थोड़ा भी बैक पेन है तो रिलीज कीजिए। इमेजिन करेंगे कि सारी पेन आपकी स्पाइन से नीचे की तरफ जो है पेन एकदम से मेल्ट होते हुए जा रही है। फिर आपकी सारी वर्टिब्रास रिलैक्स करेंगे वन आफ्टर द अनदर। धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए मिडिल पार्ट को रिलैक्स करेंगे, फिर रिलैक्स करते हुए अपर बैक को रिलैक्स करेंगे, ऑल द वे नेक तक पहुंचेंगे एंड रिलैक्स योर नेक। अपनी गर्दन को धीरे से मूव करेंगे राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे बहुत आराम ध्यान से, और फिर सीधा सेंटर पे रखेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी कमर से लेके आपकी गर्दन तक
जो आपका मीडियम पार्ट ऑफ द बॉडी है पूरा रिलैक्स हो गया। इसे और डीपली रिलैक्स करने के लिए हम लोग ऊकारा का उच्चारण करेंगे। सेकंड सिलेबल ऑफ ओम। तो गहरी सांस लेंगे, ब्रीद इन, ऊकारा जो है आपकी सोलर प्लेक्सस से वाइब आ रही है और सूर्य की किरणों की भांति आपके मध्यम भाग में फैल रही हैं। आपको कोई भी विकार है शरीर में, उसे धीरे धीरे दूर कर रही हैं। फील करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब अपना ध्यान जो है फेस पे ले जाएंगे। नाउ रिलैक्स योर चिन, रिलैक्स योर थ्रोट, गले को रिलैक्स करेंगे। आपकी जीभ को रिलैक्स करेंगे, टंग को, टीथ को, आपके लिप्स को रिलैक्स करेंगे, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, एंड मेक अ स्माइल ऑन योर फेस। अब अपना ध्यान टिप ऑफ योर नोज, नाक पे ले जाएंगे और अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अंदर जाते हुए गहरी सांस लेंगे और बाहर आते हुए। दो या तीन ब्रेथ जो है महसूस करने की कोशिश करेंगे। और हर सांस के साथ यही सोचेंगे कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ये समझेंगे कि जो भी हमारी अंदर नेगेटिविटी है वो हमारे मन से, शरीर से ही जा रही है। अब अपना ध्यान आंखों पे ले जाएंगे, आई बॉल्स को रिलैक्स करेंगे, आंखों की पलकों को रिलैक्स करेंगे, आईब्रोज को रिलैक्स करेंगे और आईब्रोज के बीच में जो आज्ञा चक्र है, जो पॉइंट है, उसे रिलैक्स करेंगे। आपके माथे को रिलैक्स करेंगे। माथे में कोई शिकन नहीं होनी चाहिए। अब दोनों कानों को रिलैक्स करेंगे। अब सिर को रिलैक्स करेंगे, ऊपर से, साइड से, पीछे से, और इसे और गहरा रिलैक्स करने के लिए हम लोग म कारा का उच्चारण करेंगे। म कारा, द थर्ड सिलेबल ऑफ ओम। म। तो गहरी श्वास भरेंगे और म कारा बोलेंगे। म कारा माइंड को एकदम रिलैक्स और कामिंग इफेक्ट देते हुए
पूरी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, महसूस करेंगे। शरीर को रिलैक्स करने के लिए पैरों से लेके सिर तक हम आ, उ, म तीनों का उच्चारण एक ही सांस में करेंगे, सांस छोड़ते हुए। तो गहरी सांस लेंगे, ब्रीद इन, उमा। पूरा शरीर एकदम शिथिल, रिलैक्स हो रहा है। इमेजिन करेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का हो रहा है, इतना हल्का कि एक हवा के झोंके से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो नीचे देखेंगे, बहुत सुंदर पहाड़, झरने, फूल, पक्षी उड़ते हुए धीरे धीरे एकदम ऊपर जाके जैसे आप बादलों में घिर रहे हो। You can touch the clouds and you can feel the coziness, fluffiness महसूस कर रहे हो। इतनी बॉडी लाइट हो गई है, शरीर के साथ साथ मन भी एकदम लाइट। और अब हम और ऊपर जाके फिर टच द स्काई, आसमान के साथ मर्ज हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। Sky which is limitless, infinite, वैसे ही हम भी उसके साथ एक जाएंगे, जैसे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और अब महसूस करेंगे हमारे अंदर जो भी विकार हैं, जो भी डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, उन्हें एक एक करके हमारे मन से, दिमाग से धीरे धीरे जाने देंगे। लेट इट गो। कोई इम्प्रेशन है, कोई गिल्ट है मन में, कोई ऐसी बात है जो इतने सालों बाद भी आपको चुभती है, उसे रिलीज करेंगे। लेट इट गो। डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, गिल्ट इन द माइंड। इट डजंट बिलोंग टू यू, यह आपके लिए नहीं है। लेट इट गो। एक एक करके उसे मन से जाने देंगे, महसूस करेंगे मन को कि आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है। एंजॉय करेंगे इस लाइटनेस को। अब अपने शरीर को और एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। एक्सपैंड योर अवेयरनेस और फील करेंगे कि सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर समा रही है। एक ऊर्जा का सृजन हो रहा है आपके शरीर में, मन में। उसे एंजॉय करेंगे।
Enjoy the peaceful state of mind. अब धीरे धीरे जो है अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे और महसूस करते हुए अपने शरीर को, और अपने शरीर को महसूस देंगे, वही हल्कापन, वही लाइटनेस, वही पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। शरीर एकदम रिलैक्स, सांसें एकदम धीरे, मन एकदम शांत। Enjoy this state of mind. अब अपने मन को रिलैक्स करते हुए कोई भी आवाज हमारे आसपास या दूर से आ रही हो उसे सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई ट्रैफिक की आवाज, किसी के बात करने की आवाज, धीरे धीरे अपना ध्यान जो है पास की आवाजों पे लाएंगे। जैसे मेरी आवाज, इस म्यूजिक की आवाज, पंखे की आवाज, या फिर घड़ी की आवाज अगर आप सुन सकें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने अंदर तक लाएंगे और अपनी धड़कनों को सुनते हुए रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर में ही आपका मन इस बाहर दुनिया एकदम चला जाए और आप महसूस करेंगे अंतर मौन, that inner silence, that inner happiness. इनर साइलेंस पे मेडिटेट करेंगे कुछ सेकंड के लिए। मन एकदम शांत, कोई डिस्टर्बिंग थॉट नहीं। अब आपका मन एकदम सरोवर की तरह हो गया है। एक बहुत ही सुंदर सरोवर, तालाब, लेक। अब इस सरोवर में, इस मन रूपी सरोवर में एक हंसा लेके आएंगे। हंस, सुंदर सा हंस। ये हंस आपका पॉजिटिव थॉट है।
ये आपके मन का रिजॉल्व संकल्प, आपका अपना संकल्प। कोई भी पॉजिटिव थॉट मन में लाइए और उसे 3 बार मन में दोहराएंगे। जैसे जैसे दोहराएंगे वो और गहरा होता है। जैसे कि हंस उस तालाब में खुशी से तैर रहा है, वैसे वैसे ये संकल्प भी सच हो जाएगा। अब हमारा शरीर, हमारा मन एकदम शांत है। अब हम एक ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन। ओम साउंड जो कि आपके साथ एकात्म हो रहा है। ओम, आप ओम में मिलते जा रहे हैं। अब हम धीरे से अपनी उंगलियों को विगल करेंगे, पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाके शरीर को स्ट्रेच करेंगे हल्का सा, और एक तरफ धीरे से करवट लेंगे एक साइड पे। कुछ करवट पे लेटेंगे और धीरे से जो है उठकर किसी भी कंफर्टेबल बैठने की स्थिति में आएंगे। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर पे आप बैठ सकते हैं। अपना समय लीजिए। अब हम नमस्कार मुद्रा करेंगे और शांति मंत्र बोलेंगे। आप मेरे बाद दोहरान कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने एक खुशी का अनुभव किया, शांति का अनुभव किया। लेट्स शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द होल यूनिवर्स। पूरे विश्व के साथ हम ये शेयर करेंगे शांति मंत्र। रिपीट आफ्टर मी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। The meaning of this mantra is कि सब सुखी रहें, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी से सफर ना करें और सब लोग अच्छा ही अच्छा देखें।
कोई भी जो है दुख ना अनुभव करे, सब खुश रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम आज का सेशन खत्म करते हैं। रब योर पाम, हथेलियों को रब कीजिए और पूरे चेहरे में मसाज करेंगे। एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे शरीर में और धीरे से दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने और विद फ्यू ब्लिंक जो है धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप सबने रिलैक्स किया होगा, एंजॉय किया होगा। ओके, सो अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको। किसी का कुछ भी हाँ जी। क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, ये आपने जैसे शुरू में किया ई, जो मतलब स्टार्ट किया वर्ड से, जो कंसंट्रेट करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए, तो आपने पहले बोला। ठीक है, मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। हाँ हाँ। तो जैसे हम ओम बोलते हैं तो इसमें हम ओम AUM, ये वाला ओम, ठीक है। ओके मैम। तो अगर हाँ एक बार एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। तो जो ए है, अ साउंड है वो, ठीक है, वो हमारे निचले भाग को रिलैक्स करता है और उसकी जो ध्वनि होती है वो हमारी नाभि से निकलती है। जब आप बोलेंगे तो वो नाभि से निकलते हुए पैरों तक को रिलैक्स करेगी। और जब हम ऊ बोलते हैं, ऊ, तो वो हमारे चलती है, हमारे सोलर प्लेक्सस से निकलती, हमारे फेफड़ों से बोलेंगे ना, तो जैसे आपको खुद महसूस होगा आपके चेस्ट पे वाइब्रेशन करेंगे। तो वो हमारे मध्यम भाग, हमारी गर्दन से लेके हमारी कमर तक के हिस्से को रिलैक्स करती है। जब बोलते हैं म कारा, म बोलते हैं तो वो हमारा साउंड जो है वो नाक से निकलता है, जो कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे पूरे हेड रीजन को जो है वो वाइब्रेशन रिलैक्स करती है। तो इसलिए, और एंड में हम आ ऊ मतलब तीनों को है एक साथ एक ही सांस में छोड़ते हुए बोलते हैं, जिससे कि हमारा पूरा शरीर जो है एकदम रिलैक्स हो जाए, डीपली रिलैक्स हो जाए, इसलिए बोला जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो गुलशन जी, या नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, आपने जो बताया कि हम लोग जब लेट के पूरे बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं एक एक करके, वो ऐसा करने से सचमुच में पूरा बॉडी पार्ट पूरा रिलैक्स हो जाता है। काफी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू जी। या तो क्या है, जब हम कॉन्शियसली अपने एक एक जॉइंट पे जाते हैं ना, एक एक जॉइंट को महसूस करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो सही में जो रिलैक्सेशन वो अंदर तक होता है। पुरानी से पुरानी बीमारी भी धीरे धीरे हील होने लगती है इस रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। कविता, एक चीज बताऊं मैं आपको, इसको अगर हम सुबह करते हैं ना तो पूरे दिन हमारा बॉडी ना इतनी एनर्जेटिक रहती है कि हमें कोई एक्सरसाइज करने की भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, सही बात है। हाँ, और पता है कि माइंड भी तो एकदम फ्रेश रहता है इसको करने से। हाँ, हाँ, अभी जैसे किया मैंने तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू जी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसे किसी को अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो आप ये रात को भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कभी भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना नियमित डेली अपनी कुछ योगा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्राणायाम
प्राणायाम या स्ट्रेचेस करते हैं, आसन करते हैं ना, तो एंड में ये 5-7 मिनट का रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। तो जो जो आपने बॉडी पार्ट स्ट्रेच किया है उसको जो है आप रिलैक्स, तो आपको कहीं भी पेन महसूस नहीं होगा। जैसे नींद नहीं आती रात में, मान लीजिए कि नींद गहरी नहीं आ रही है, तो उसके लिए सोने से पहले मेडिटेशन करना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ा है। तो क्या कर सकते उस समय में? हाँ जी। हाँ, तो यही जो आज जैसे किया ना, तो ऐसे एकदम शवासन में लेट के एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना। अब बेसिकली आप यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड कि रिलैक्स होने के लिए आप उसको गाइड कर रहे हो कि रिलैक्स हो जाओ, पैर रिलैक्स, कहीं कुछ दर्द भी है तो उसको कि वो हमारे शरीर से चला जाए। तो अगर नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम है, तो एक एक गए शरीर को धीरे धीरे, और नहीं तो आप आ उ म या ओम का भी धीरे धीरे उच्चारण करेंगे ना, अपने आप नींद आ जाएगी और एकदम। और उसका इफेक्ट आपको सुबह देखने को मिलेगा, इतनी अच्छी, जैसा छोटा बच्चा सोता है ना, एकदम साउंड स्लीप आती है, एंड आप सुबह एकदम फ्रेश उठेंगे, आपको बिल्कुल भी जो है ना बॉडी में एकदम एक अच्छा सा फीलिंग आएगी, मतलब अगर आप ये रात को करके सोएंगे। ओके मैम। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सुन रही। मुझे तो नींद आ गई थी, करते करते बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो बाद में हाँ आँख हाँ, खुली मैंने मेरी। शुरू तो नहीं लेकिन वो जमीन पे करना जरूरी, हाँ 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 ये जमीन पे करना जरूरी है। हाँ 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 नहीं, उसके बाद दर्द होने लगा हाँ मेरे हाँ सिर में, उठी ना तो मैं। आप हाँ तो बेड पे कर हाँ सकते हैं हाँ ना इसको? हाँ 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 हाँ, मैंने शुरू में कहा था, अगर आपने शुरू में मैंने यही कहा था कि जिनको जो कंफर्टेबल है, बेड पे लेटना चाहे या जो जमीन पे लेटना चाहे, मैट पे कुछ बिछा के, एकदम जमीन पे नहीं, मैट या दरी बिछा मैं भी के चाहा था मैंने। लेटना चाहिए। हाँ, तो अगर आप हाँ आप बेड दरी पे ही सोई थी। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। कर सकते हैं, आप जमीन आप गुलशन मैम, आपकी आवाज ना थोड़ी सी कट रही है। गुलशन मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, आई थिंक रिजॉइन कर रही है वो, 1 मिनट। हाँ जी गुलशन मैम, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी आई थिंक। हाँ 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 सॉरी। हाँ 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 जी बबीता मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ मैं पूछ रही थी, आवाज गायब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही मैं बोल रही थी कि नीचे दरी बिछा के सोई थी मैं, लेकिन जब नींद आ गई, उठी ना, तो थोड़ा सिर में दर्द सा लग रहा था, तो इसीलिए बेड पे कर सकते हैं क्या इस चीज को, हाँ तो अच्छा रहेगा। हाँ, बेड पे अपना कंफर्ट लेवल पे कहीं भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू और मैम। और नींद आना भी स्वाभाविक है, मैंने शुरू में कहा था कई बार नींद आ जाती है, क्योंकि आपकी कई हाँ बार आपने जैसे कहा था, मैं अगर खाना खाई थी ना थोड़ी देर। हाँ तभी नींद आ गई थी हाँ, मैम। तो जैसे भी क्या होता है, ये इसीलिए। सोने का टाइम होता है ना, सब हाँ सब लोग खाना खा के सोते हैं, तो उस वजह से भी कई बार, और हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं तो एकदम से हम पूरे नींद में चले जाते हैं, तो नींद भी एकदम से गहरी, चाहे 10 मिनट की नींद आए तो वो इतनी गहरी होती है। जैसे मैंने कहा, ये हाफ एन आवर का सेशन जो है आपका 4 घंटे की नींद के बराबर है। आप इतने अंदर तक जो हो जाते हैं, मतलब कई बार अगर जैसे रात भर कभी सो नहीं पाए आप, इफ यू डू दिस 20 to 30 मिनट जी जी सेशन, आपका पूरा रात की नींद जो है यू विल गेट फ्रेश। जी। हाँ जी। अच्छा,
जो कर रहे थे तो कुछ हाथ और पैरों की उंगलियों में कुछ कड़ापन महसूस हो रहा था नींद आने से जस्ट पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो क्या है, जॉइंट्स जैसे टाइट रहते हैं या बॉडी में कई बार वो मसल्स टाइट रहती हैं, तो क्योंकि आप नॉर्मली अपने पूरे दिन हम लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम हार्डली अटेंशन पे करते हैं कि वो मेरे जॉइंट्स कैसे हैं या मेरे हाथ रिलैक्स कर रही हूँ या नहीं। और जब हम एकदम शरीर को ढीला छोड़ते हैं और एक एक अंग को जो है हम रिलैक्स करते हैं, तो हमारे अंदर की जो टाइटनेस है वो एक डीपली हमें फील होती है। कईयों को बीच में ऐसा, अगर नींद में अगर कोई पुराना दर्द है तो वो दे कैन रियली फील दोज नर्व कि मेरे को यहाँ पे पेन है। जैसे आप एक्सरे करते हो ना अपनी बॉडी का, ऐसा फील होता है कि अरे ये मेरी ये नर्व, उस पर पूरा ध्यान जाता है। इसलिए फिर हम धीरे धीरे बीच में बोलते हैं ना कि लेट गो, उस चीज को रिलैक्स करो। जब रिलैक्स करते हो धीरे से वो ऐसे चला जाता है। तो वो भी महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप अंदर जी शरीर को रिलैक्स, तो टाइटनेस होती है ना शरीर के अंदर की, वो आप महसूस करते हैं उस समय, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स होती है। जी जी, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट, उषा मैम एक सेकेंड, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी मैम। हाँ मैडम, मैं रोज करती हूँ प्राणायाम और उसके बाद शवासन करती हूँ रोज। और आज देखिए, आज मैंने नहीं किया था तो आपने करा दिया, अच्छा लगा बहुत मैडम, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। आज रह गया था मेरा। नहीं करते तो इसको योगा के बाद में करते हैं। आज जो रिलैक्सेशन हुआ उसमें डीप एकदम मतलब नींद आ गई थी गहरी वाली, वो चीज नहीं होता है सुबह में। नहीं, मैं तो करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। मैं कुछ तो अच्छा अच्छा, काफी समय से कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कोर्स भी किया हुआ है। हाँ हाँ जी, नहीं बढ़िया है। जैसे मैंने कहा कि एक जैसे हम रोज नहाते हैं है ना, अपने बॉडी को आउटर वे में हम क्लीन करते हैं, वैसे ये इनर वे है अपनी बॉडी को क्लीन रिलैक्स करने के लिए। जी हाँ मैम। ओके, आई थिंक सबने किया है और सबको आई होप कि थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हुआ होगा। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज विल एंड दिस सेशन नाउ। Okay. Thank you so much, Gulshan ma'am. Thank you so much. We really enjoyed your session. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much Thank you, everyone ma'am. to give me this opportunity. Yeah. थैंक यू रति मैम। Thank you, all ma'am. super mom. Okay, Thank you, thank Rati. ma'am. Thank you, Okay. Shobna ma'am. Okay. Thank you, Gulshan ma'am. थैंक यू रति जी। Thank you, ma'am. Thank you, Ashna ma'am. Bye. अर्चना कुछ याद आया? सब कुछ याद आ गया। तेरे यहाँ कोई नींद आ जाती थी जब तुम्हारे यहाँ। अर्चना हमेशा शवासन में सो जाती थी। मैं सो जाती थी यार। आज क्या किया मैम, सोए या जागे रहे? नहीं, सो गई थी आज भी। अच्छा। मेरा साथ दे रही थी। हाँ, मैं सो जाती हूँ अधिकतर सब शवासन में। शवासन में नींद आती है, रिलैक्स होते हैं ना हम, तो उससे नींद आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू।
बबीता मैम नेक्स्ट टाइम आप खड़े होके करना सेशन। नहीं बबीता जी को एक्चुअली में चक्कर इसलिए भी आया होगा, जो बोल रही है ना भारी हो गया सर, वो थोड़ी देर ना आप लेटे रहो, रिलैक्स करो ना। और तो जो इन्होंने गुलशन जी ने जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी करवट लेके है ना, अगर आपको हल्का सा चक्कर आ रहा है ना, आप उसी पोजीशन में लेटे रहे 2 मिनट, फिर नहीं आएंगे आपको, सर भारी नहीं होगा फिर। नहीं, या फिर इनके मन में ये था कि जब ये बोलेंगे मुझे उठना है तब भी होता है ऐसा। हाँ तब भी होता है ऐसा। क्योंकि मन में ये चीज था कि इंतजार में थी कि कब बोले अब उठ जाऊंगा। आप रिलैक्स भी होना चाह रहे थे, है ना? जब बोलेंगे तो मुझे उठना भी है, इसलिए हुआ है। नहीं तो नॉर्मली सर भारी नहीं होता, सर बहुत रिलैक्स हो जाता है, हल्का फील करते हैं हम लोग। मैम हाँ जी, मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो जो हम लोग पहाड़ों के बीच में थे जब ना, तो 2-3 सेकंड के लिए मैंने ना खुद को ना कविता मैम के साथ देखा। कविता मैम पहाड़ों के बीच में आगे जा रही है, मैं उनके पीछे जा रही हूँ। वेरी गुड। देखो कविता मैम आप कितनी फेमस हो। और कविता मैम आराम से आंख बंद करके लेटे हुए थे, अच्छे से कविता भाभी की वो पिक मैंने ली है। मतलब तुम नहीं कर रही थी? नहीं, खाना खिला रहे थे, वो ट्यूशन से आया था। बिल्कुल कैच किया उन्होंने, मतलब आप सेशन नहीं कर रहे थे, आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। जो है ना ट्यूशन से आया था तो उसको खाना खिला रही थी। ओके कविता मैम आपके साथ कौन था बादलों में पहाड़ों में? किसी ने आशी के साथ घूम रही थी। वही तो बोल रही, आशीष जी थे। इसी को तो इमेजिनेशन कहते हैं। कविता भाभी अपने लोग के तो घर के पीछे एक पहाड़ है, बादल है, दलवा में घूम रहे थे हीरोइन दोनों। हाँ जी ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू गुलशन मैम। थैंक यू रति मैम। थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय।